Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 10 biology, chapter 12, coordination and control. Okay students, in today's lecture we will study the introduction to ear. So in today's lecture we will study the different parts of the ear. Like first part which we will study is external ear, then we will study the middle ear, then the third part of the ear which is inner ear. We will discuss them in detail. Okay students, then we will study this process of hearing in detail, and at the end we will discuss the ears maintain the balance of the body. It means ke how ear maintains the balance of the body. We will discuss it today. Now we will start today's lecture. Ear, we will discuss it in detail. So students, basically hearing is as important as vision. Our ear helps us in hearing and also to maintain the balance or equilibrium of our body. It means कि आपकी जो hearing है वो important होती है. Basically आपकी जो ear है उसके थ्रू आप hearing कर सकते हो. इसके अलावा जो ईयर है आपका वो आपकी बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन रखता है, इसको इक्विलिब्रियम में रखता है. मींस कि जो आपका बॉडी पोस्चर होते हैं आपकी मूवमेंट्स में और स्लीपिंग में, उनको कौन मेंटेन कर रहा है? ईयर मेंटेन कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ ईयर. बेसिकली ईयर हैज 3 मेन पार्ट्स. लाइक फर्स्ट वन external ear, second one middle ear, and the third one inner ear. We will discuss each of these parts in detail. Parts of ear. Okay students, now we will discuss the different parts of the ear. So first one we will discuss the external ear. Okay students, external ear is further divided into the 3 main parts like pinna, auditory canal and eardrum. अभी जो external outer ear होता है इसके further 3 parts होते हैं, pinna, auditory canal and eardrum. Now we will discuss each of these parts in detail. Okay students, now we will discuss the external ear in detail. So we will discuss its first part which is pinna. So students, what is pinna? Basically pinna is the broad external part of cartilage and covered with skin. Okay students, as you can see in the diagram, अब ये जो पिन्ना है that is the pinna. अभी जो outer portion आपको ear के outer side पे visible हो रहा है ये external ear का part है and that is known as the pinna. ये कार्टिलेज से मिलकर बना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ पिन्ना. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिन्ना? बेसिकली इट हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल. अब बेसिकली पिन्ना का क्या फंक्शन है? ये साउंड वेव्स को क्या करता है? ट्रैवल करवाता है ऑडिटरी कैनाल में. इट मीन्स कि साउंड वेव्स को सेंड करता है ऑडिटरी कैनाल में, ट्रांसफर करता है. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ऑडिटरी कैनाल? नाउ वी विल डिस्कस इट. बेसिकली there are special glands in the walls of the auditory canal which produce wax. अभी जो auditory canal होती है इसके अंदर glands present होते हैं जो कि wax की production करते हैं. Now the wax and the hairs in auditory canal protect ear from small insects, germs एंड डस्ट. अब ये जो ईयर के अंदर वैक्स प्रेजेंट होती है और हेयर प्रेजेंट होती है, ये क्या करती हैं? ये आपको जर्म से, इंसेक्ट से और जो डस्ट होती है उसको इनसाइड द ईयर एंटर होने से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. इन एडिशन टू दिस दे हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल. इट मीन्स कि जो वैक्स है ये क्या करती है? ये टेम्परेचर मेंटेन कर रही है आपकी ऑडिटरी कैनाल का. देन ये डैम्पनेस मीन के मॉइस्चर मेंटेन कर रही है ऑडिटरी कैनाल का. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द एक्सटर्नल ईयर, दैट इज द ईयर ड्रम. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज ईयर ड्रम? बेसिकली ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन अ ईयर ड्रम एज यू कैन सी इन द डायग्राम. ये जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन है ये ईयर ड्रम है जो कि क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है थिन मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेशन करिए. ये आपका मिडल ईयर है और ये एक्सटर्नल ईयर है, इसके दरमियान में जो सेपरेशन है वो ईयर ड्रम के थ्रू हो रही है. मिडल ईयर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द मिडल ईयर. सो स्टूडेंट्स, मिडल ईयर इज अ चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल ईयर. अब आपके एक्सटर्नल ईयर के बाद मिडल ईयर स्टार्ट होता है. सो मिडल ईयर इज फर्दर
divided into the three main parts like middle ear ossicles, oval window and eustachian tube. It means कि middle ear के आगे further three parts होते हैं. अब middle ear ossicles small bones होती हैं. अब ये three types की middle ear ossicles middle ear में present होती हैं like वो कौन कौन सी हैं? First one malleus, second one incus and the third one is stapes. Now we will discuss each of these parts in detail. Middle ear. Okay students, now we will discuss the middle ear in detail. We will discuss its first part like middle ear ossicles. What are middle ear ossicles? We will discuss it. Okay students, basically three small bones called middle ear ossicles. These movable bones include malleus, incus and stapes. Malleus is attached with eardrum, then comes incus and finally stapes that is connected with a membrane called oval window. Okay students, as you can see in the diagram, अभी जो three smallest bones आपकी middle ear में present हैं, ये movable bones होती हैं, ये chain की form में आपके middle ear के अंदर present होती हैं. फर्स्टली आपकी जो मेलियस है ये आपकी टिम्पैनम मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, ईयर ड्रम के साथ अटैच है, देन इंकस है, देन एट द एंड जो स्मॉलेस्ट बोन है आपकी मिडिल ईयर में वो स्टेपिस है और स्टेपिस किसके साथ अटैच है? ओवल विंडो के साथ अटैच है. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द ओवल विंडो. व्हाट इज ओवल विंडो? बेसिकली स्टूडेंट्स ओवल विंडो सेपरेट्स मिडिल ईयर फ्रॉम इनर ईयर. अभी जो ओवल विंडो होती है ये आपके मिडिल ईयर को इनर ईयर के साथ क्या करती है? सेपरेट करती है. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर अबाउट द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन लाइक द ईयर ड्रम आपके एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करता है. सेम ओवल विंडो मिडिल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करती है. नाउ वी विल डिस्कस द ट्यूब विच इज प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर, दैट इज द यूस्टैकियन ट्यूब. ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली मिडिल ईयर आल्सो कम्युनिकेट्स with the nasal cavity through eustachian tube. As you can see in the figure, ये यूस्टैकियन ट्यूब है. ये यूस्टैकियन ट्यूब का कनेक्शन आपके नेजल कैविटी से होता है. नेजल कैविटी जो कि आपकी नोज के अंदर स्पेस है. सो स्टूडेंट्स, ये यूस्टैकियन ट्यूब का क्या पर्पस है? नाउ वी विल डिस्कस इट. बेसिकली दिस ट्यूब रेगुलेट्स द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम. अभी जो यूस्टैकियन ट्यूब होती है ये ईयर ड्रम जो है इसकी दोनों साइड्स पे क्या मेंटेन कर रही है? एयर का प्रेशर मेंटेन कर रही है. इट मीन्स के एयर के प्रेशर को क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है, बैलेंस कर रही है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द नेजल कैविटी. Inner ear. Okay students, now we will discuss the inner ear in detail. Basically students, inner ear consist of three parts. Inner ear को आगे further three parts में divide किया हुआ है like first one vestibule, second one semicircular canal and the third one is cochlea. Now we will discuss each of these parts in detail. Inner ear. Okay students, now we will discuss the inner ear in detail. So students, we will discuss this first part like vestibule. What is vestibule like students? Basically vestibule is present in the center of inner ear as you can see in the diagram. अभी जो vestibule है, vestibule आपके ईयर में सेंटर में प्रेजेंट है, दैट इज द वेस्टिब्यूल. अभी सेकंड आप फिगर में देख सकते हो ये वेस्टिब्यूल है. अब वेस्टिब्यूल जो है इनर ईयर के सेंटर में प्रेजेंट है बिटवीन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉक्लिया. देन स्टूडेंट्स, व्हाट आर सेमी सर्कुलर कैनाल्स? वी विल डिस्कस देम like three canals called the semicircular canals are posterior to the vestibule. As you can see in the diagram, ये three semicircular canals हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल. ये थ्री सेमीसर्कुलर कैनाल्स हैं जो कि वेस्टिब्यूल की बैक साइड पे प्रेजेंट है. अभी सेकंड फिगर में आप देख सकते हो ये थ्री सेमीसर्कुलर कैनाल्स हैं जो कि वेस्टिब्यूल की बैक साइड में प्रेजेंट है. बेसिकली ये जो वेस्टिब्यूल और सेमीसर्कुलर कैनाल्स हैं लेटर ऑन आप स्टडी करोगे कि ये आपके बॉडी का क्या मेंटेन करती है? बैलेंस मेंटेन करती है. Okay students, now we will discuss the cochlea which is the main part of the inner ear. What is cochlea? The cochlea is made of three ducts and wraps itself into a coil tube. Okay students, cochlea की अगर आप शेप ऑब्जर्व करो तो जस्ट आपको स्नेल की तरह इसकी अपीयरेंस लगेगी. सो ये जो कॉक्लिया होता है इसमें थ्री डक्ट्स होती हैं प्रेजेंट, थ्री ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्वाइल्ड फॉर्म में, क्वाइल्ड शेप में आपको अपीयर हुई नजर आ रही हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ द कॉक्लिया. अब ये जो कॉक्लिया है, अब इसमें थ्री डक्ट्स हैं.
अब इसकी जो मिडल डक्ट होती है, मिडल डक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मिडल डक्ट के अंदर रिसेप्टेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, साउंड रिसेप्टेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं और आगे मैसेज कन्वे करते हैं ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को, देन आपको सेंसेशन होती है हियरिंग की. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इनर ईयर. Okay students, at the end we will summarize the whole topic with the help of the diagram. Okay students, in ear we have discussed the three different parts of the ear, like external ear which consist of the pinna and auditory canal and membrane which is known as the eardrum or tympanic membrane. Okay students, now we have discussed the middle ear. Middle ear consists of the three smallest bones like malleus, incus and the stapes, and oval window. Oval window which is a membrane which separates the middle ear and the inner ear. Then we have discussed the Eustachian tube in the middle ear which maintains the air pressure. Then we have discussed the inner ear which is made up of three different parts like vestibule, then semicircular canals and cochlea. अब then ये जो cochlea होता है, यहाँ से आपके जो messages होते हैं, sensation होती है hearing की, वो कॉक्लियर नर्व जो होती है ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को जाती है, देन आपको सेंसेशन होती है हेयरिंग की. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर.